नाज़रीन, मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनके बेटे को 9C के पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी जानिब से मुबैना इल्ज़ाम है कि बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके घर में कुछ अमाउंट मौजूद थी जो इन्होंने अपने मकान को गिरवी से छुड़वाया था। मेरी बेटी ने चपेड़ा मारन की कोशिश की थी। ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਚ 130 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ना कोई पैसा है ऐसे, ना असी खाना, ना मेरा कोई हैगा। आप देखें, आईओ पैसे खाता है, एसएचओ पैसे खाता है। खातून मौजूद है जिनके बेटे को 9C के पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी जानिब से मुबैना इल्ज़ाम है कि बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके घर में कुछ अमाउंट मौजूद थी जो इन्होंने अपने मकान को गिरवी से छुड़वाया था, और 3 लाख रुपया वो मौजूद था जो इन्होंने नेक्स्ट आगे मकान लेना था। 20,000 रुपये इनकी बेटी की बालियां बेच के रखा था, और इन माँ जी का इल्ज़ाम है कि 130 रुपये मेरे वॉलेट से पुलिस वाले निकाल कर ले गए। जब ये वापस थाने जाती हैं अपने पैसे लेने के लिए तो इनको धक्के मारे जाते हैं, मंशियात फरोश की माँ कहा जाता है और गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है। क्या मामला है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के गए ना बेटे, उसले कहंदे सी तुहाडी अमानत है, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਥਾਣੇ जिसको लेके गए ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। गालां कढ़ियां उन्होंने? ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਬਕੇ ਦੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੋਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਲੈਟ ਗਈ ਸੀ, 5-6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਨੇ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। किन्ना ने चपेड़ा मारन दी कोशिश? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। क्यों? ਇਹ ਜੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਚ 130 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। 130 रुपए भी लगे? 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ऐ ईमानी तुसी कह रहे हो? ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਈ। 130 रुपए भी लगे? ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਚ। किन्ने पुलिस वाले सन? 6 ਜਣੇ ਸਨ, 2 ਸਿਵਲ ਵਰਦੀਆਂ, 4 ਵਰਦੀਆਂ। दिन दा टाइम सी? 5-6 ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਹਾਂ 9-10 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਹੀ FIR ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵੋ, ਖਰਚਾ ਦੇਵੋ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 20,000 ਇਹਦਾ ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 200-300 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਮਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ कैसे ਇਹੋ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਗਏ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਲੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ? बेटा भी ले, पर्चा भी देता? पर्चा भी देता।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਗੈਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਨਾ ਆਈ ਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ 2 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦੀ ਪਤਾ ही नहीं किया कि साड़ी फूफी कितने, तो मैं कहना जावा। ये हालात हैं इन माँ जी के कि वो कह रही हैं कि पुलिस वाले मेरी बेटी के वॉलेट से 130 रुपए ले गए। अली भाई, आप केस देख रहे हैं, किस नौयत का केस है कि पुलिस इतनी जालिम हो गई है कि इनके घर एंटर हुई है, मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया, उसने जो किया होगा, लेकिन इनके साथ ज्यादती करने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपका और आपके चैनल का कि आप लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए इस केस को टेकअप करने के लिए। पहले जो आपने फ़िक्रा बोला मैं उस पर एतराज़ करूँगा कि इतनी का क्या मतलब है, पुलिस तो पहले से ही ज़ालिम थी। अच्छा, हाँ जी, ये इतनी का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये मुनासिब नहीं है। इतनी तब हो जब अभी हो। दूसरी बात ये है कि ये 9C का ये पर्चा है, ये माँ जी के बेटे हैं, वो ये इकरार कर रहे हैं कि वो ड्रग यूज़र ज़रूर हैं लेकिन वो ड्रग्स का बिज़नेस नहीं करते। अब पुलिस का पंजाब में ख़ास कर एक वतीरा बन गया। पिछला एक रिसेंट मैं केस डील कर रहा हूँ, 9C के तकरीबन 14 मुकदमात एक बंदे के ऊपर दर्ज हैं। और वो मामला क्या है कि पुलिस जब आपसे पैसे लेती रहती है और आप पैसे देते रहते हैं तब तक मामला ठीक चलते हैं। जो FIRs हैं उनको भी दबा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप पुलिस को पैसे नहीं देते, इनको हड्डी नहीं डालते, उसके बाद इनका वतीरा बन गया है कि लोगों के घरों पे छापे मारना, उनकी तजलील करना, चादर और चार दीवारी का एहतराम न करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। यहाँ जो ये चीज़ है कि इनका बेटा पकड़ा है, वो तो तफ्तीश बताएगी वो ठीक था या गलत था, लेकिन इस वालदा के साथ, इस खतून के साथ, इस माँ जी के साथ जो इनके पैसे ले लेना, इनकी बालियाँ बेटी ने बेची थी वो ले लेना और इनके वॉलेट में से 130 रुपये निकाल लेना, क्या ये जुल्म नहीं है? इन्होंने जाके डिमांड की है कि वो पैसे तो वापस करें। देखिए अब्दुल्ला भाई, ये भी FIR में उनका कोई और रेफरेंस हो कि ये से बरामद हुई है? नहीं, देखें पुलिस का ये भी आपने जो बात की है, पुलिस का वतीरा है। हम तो चूँकि हमारा एक बैकग्राउंड है गांव से, तो हम तकरीबन 20 साल पहले सुनते थे कि पुलिस ने किसी के घर पे रेड किया। रेड करने के बाद किसी के घर से पैसे नहीं मिले तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो होर नहीं देंदा, नलका ही पुट के ला जो है बेच के कोई 200 रुपया बन जाएगा। ठीक है, ये एक पुलिस कल्चर, एक इतना पैथेटिक आपका कल्चर है। आप देखिए क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो बेस इस पे करता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इसके ऊपर बेस करता है। आप देखें IO पैसे खाता है, SHO पैसे खाता है, कौन बंदा इधर पुलिस का है जो पैसे नहीं खाता? उसके बाद इनकी जो कहानी है, तकरीबन बकौल इनके 6 बंदे जो पुलिस वाले थे वो आए हैं इनके घर। ठीक है, आपका काम है कि आपको अगर मुखबरी हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनका बेटा है जो मुलज़िम है अंदर, उसका दोस्त उसने मुखबरी की है, उसको पता था कि इनके घर में पैसे मौजूद हैं क्योंकि वो दोस्त था जो मुलज़िम है उसका दोस्त था। इनके गिरवी सारा जो दारोमदार है वो पैसों से रिलेटेड तो नहीं था उनको लेने के लिए? ये तो ज़ाहिर बात है, पुलिस करती ही इस तरह है। अब देखिए मसला ये होता है कि आप जा रहे हैं, आप एक अच्छी पार्टी, आप पैसे दे सकते हैं, आपके पास अगर 40 किलो भी चरस पड़ी है ना, तो पुलिस ने अगर बरामद कर लिया है, उसके बाद पुलिस पैसे लेके आपको छोड़ देगी। अब 40 किलो वो चरस उन्होंने किसी ना किसी पर डाल दी तो है ना, और वो उसको कारोबार बनाते हैं। मसलन आपके ऊपर डाल दिया, ये कोई यूज़र है इनके ऊपर डाल दी, कोई और ड्रग एडिक्ट है उसको पकड़ लिया उसके ऊपर डाल दिया, उधर से भी पैसे ले लिए, और उसके बाद वो चरस को मुख्तलिफ बंदों के ऊपर डाल के उनकी रिकवरी करवा के उसके बाद उनसे भी पैसे लेना। ये इनका वतीरा है, ये इनका बिजनेस है सर, बहुत बड़ा बिजनेस है, खास कर पंजाब में बहुत ज़्यादा। जालिम छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, कोई और लफ्ज़ डिक्शनरी में लेके आएँ कि आप देखें कि जो इनके मुखबर है वो इसका भी दोस्त है मुलजिम का। ठीक है, मुलजिम को पैसे मिलते हैं, जो भी इनके मामलात हैं प्रॉपर्टी के या गिरवी घर के, उसको पता चलता है कि पैसे इसके पास हैं। उसने जाके जो मुतलका थाना था, थाना नवाकोट,
उधर जाके कहा है, मुखबरी की है कि इनके पास पैसे आए हैं और ये बंदा ड्रग यूज़र भी है। उन्होंने छापा मारा है, उन्होंने सबसे आगे पहले वो पैसे पकड़े हैं, ठीक है। और अब देखें कि जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि इनकी बेटी की 20,000 की वालियाँ वो बेच के, उन्होंने कोई अपना मकान वगैरह लेना था, वो गिरवी उन्होंने पहले लिया हुआ था, फिर उन्होंने लेना था, वो भी ले गए हैं। और देखें कि 120 रुपये भी ले गए हैं। बहुत जुल्म है जी, बहुत जुल्म। वो 120 का ज़ाहिर बात है, उनका कोई लोड शोड हो जाएगा, घर के कोई मामला तो 200-300 मेरे बटुए से भी ले गए। नाज़रीन, इस खतून के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और ये हमारी पंजाब पुलिस का एक तरीका कार है कि वो डर के साथ खेलते हैं। पर्चा तो एक अलग चीज़ है, ये आपको प्रेशराइज ही इस तरह का करेंगे कि आप इनको मिठाई देने के सिलसिले में मजबूर हो जाएंगे। खर्चा पानी जी, दिहाड़ी दें, खर्चा पानी दें, मजबूर हो जाएंगे, चाय पानी दें, ये अब अलमिया मेरी बेटी आफिया तो उन्होंने क्या पहले खर्चा पानी दिया। बिल्कुल इस तरह नहीं है जी। FIR लेने जाए तो खर्चा पानी देते हैं। और देखिए लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। अब ये देखिए ये FIR है ना, ये साथ एक पुलिस सेंटर बना हुआ है और आप उधर जाएं, आप उधर 10 रुपये या 20 रुपये गालबन दें, आप ये FIR ले सकते हैं। लेकिन अवाम में भी कानून की अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है कि ये उधर जाने की बजाय इधर आएँ। लेकिन आपको पता है लोग कोर्ट कचहरियों से भी डरते हैं। जी, लोगों का दिमाग में पुलिस का एक ऐसा तासुर पाया जाता है कि लोग बात करने से डरते हैं कि पता नहीं यार मैं ये करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।